بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 19ویں صدی کے آخر کا دور صنعتی ترقی کے عروج کا دور تھا، انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی صنعتیں عروج پر تھی، ان کی پیداوار عروج پر تھی اور یورپ کے ملکوں کو اپنی صنعتی پیداوار کے لیے خام مال کی ضرورت تھی، افرادی قوت کی ضرورت تھی، اور انہیں اپنے خام مال سے پیدا ہونے والے جو ان سے صنعتوں سے پیداوار ہو رہی تھی اس کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش تھی، اور نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر نکل کھڑے ہوئے۔ دنیا کو ماڈریٹ کرنے کے نام پر، دنیا کو جدیدیت سے آشنا کرنے کے نام پر، دنیا کو تہذیب سکھانے کے نام پر وہ پوری دنیا کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر رہے تھے۔ قوموں کو غلام بنایا جا رہا تھا، زمینوں کو آکوپائی کیا جا رہا تھا، اور ایسے وقت کے اندر ان کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جا رہا تھا۔ ایک بہت طویل بہت حیرت انگیز دوڑ شروع ہو چکی تھی، پوری دنیا کو کالونائز کرنے کا کام کیا جا رہا تھا، اور اسی اسنا کے اندر یورپ کے ان ملکوں کے مفادات آپس کے اندر ٹکرا گئے، کلیش ہو گیا ان کا، اور 1881 میں سہارا اور تیونس پر فرانس کے قبضہ نے اٹلی کو برہم کر دیا۔ 1897 میں تھائی لینڈ کے لیے برطانیہ اور فرانس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ 1904 میں بیلجیم نے کانگو پر قبضہ کر لیا جس نے پورے یورپ کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی نے ٹوگولینڈ، کیمرون اور نیو گینیا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور جرمنی برطانیہ کے اندر تناؤ بڑھ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک یورپ دنیا کے 1,10,00,000 مربع میل کے علاقے کے اوپر قابض ہو چکا تھا، اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا آپس کے اندر مفادات کا ٹکراؤ اور ٹینشن کریٹ ہو چکی تھی۔ 28 جولائی 1914 کو شاہ آسٹریا کا بیٹا فرڈینینڈ قتل کر دیا جاتا ہے۔ آسٹریا سربیا پر جنگ مسلط کر دیتا ہے، رشیا آسٹریا پر حملہ کر دیتا ہے، جرمنی فرانس پر حملہ کر دیتا ہے، اور فرانس اور بیلجیم میں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ جنگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمن فورسز امریکن جہازوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں اس کے اندر، اور امریکہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ گلوبل وار کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، بہت بڑی جنگ، پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ جنگ دراصل طاقتور صنعتی قوتوں کے درمیان کمزور ملکوں کی افرادی قوت، ان کے وسائل، ان کی زمینوں اور تجارتی منڈیوں پر قبضے کے لیے تھی، یہ معیشت کے لیے تھی، یہ ریسورسز کے اوپر قبضے کے لیے تھی، یہ افرادی قوت کو غلام بنانے کے لیے تھی، اور یہ دنیا کی نون تاریخ میں فرسٹ ورلڈ وار یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور اس تباہ کن جنگ میں 16 ملین لوگ مارے گئے۔ اس تباہ کن جنگ میں زخمی ہونے والے لوگوں کی تعداد 21 ملین سے زیادہ، اور فوجی جو مارے گئے وہ 9.7 ملین 6.8 ملین سویلین اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ پوری دنیا کے اندر یہ جنگ پھیلی ہوئی تھی، اور جس علاقے کی وجہ سے جن لوگوں کو کالونائز کیا جا رہا تھا، جن علاقوں کو آکوپائی کیا جا رہا تھا، اس میں افریقہ، عربیہ، ایشیا اور فار ایسٹ تک یہ سارا علاقہ اس کے اندر شامل تھا، جس کے اوپر یورپ چڑھ دوڑا تھا، اور یہ آج بھی جنگیں اسی طرح جاری ہیں۔ یہ تلواروں سے ہاتھ دور نکل گیا، پسٹل، پھر بندوقیں اور کلاشن، اور آج کے دور میں ان کا 4th جنریشن وارفیئر ویپن جو ہے وہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے۔ یہ دو ادارے ہیں جس کے ذریعے وہ کھڑی کھڑی ریاستوں کو گرا دیتے ہیں، اور یہ ان کے سب سے خوفناک ہتھیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یوگوسلاویا یورپ کی پیشانی کے اوپر واحد کمیونسٹ ملک باقی رہ گیا تھا، جس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ قرضے دیے، دوسری مرتبہ قرضے دیے، تیسری مرتبہ قرضے دیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان ملکوں سے یوگوسلاویا سے انہوں نے کس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، اور وہ قسط ادا نہیں کر سکے۔ تب جس طرح ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر آج IMF کے لوگ بیٹھ کر آپ کے بجٹ کی نوک پلنگ سنوارتے ہیں، اسی طرح وہ یوگوسلاویا کے اندر اترے، اور ان کو ان کے انرجی ریسورسز کے سے استعمال سے روک دیا گیا، ان کی انڈسٹری کو برباد کیا گیا، اور ان کی عوام بدحالی کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کے ملک کے اندر بیٹھ کر IMF نے سب سے پہلے ان کی حکومتوں کو جو درس دیا وہ یہی تھا کہ آپ اس طرح کریں، 7 دن گیس استعمال کرتے ہیں اور انرجی کا بے جا استعمال کرتے ہیں اور دولت کا ضیاع کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، 1 دن چھٹی کریں، 1 دن ناغہ کریں، بلینز بچ جائیں گے آپ کے، اور 1 دن ناغہ کرنے کے بعد جو پیسے بچیں وہ پیسے آپ ہماری قسط ادا کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ اور کمال ہے، یوگوسلاوین گورنمنٹ ان کے جھانسے کے اندر آ گئی، انہوں نے
एक दिन छुट्टी कर दी। वो कौम जो हफ्ते में 7 दिन कमाती थी और पूरी नहीं पड़ती थी, अब वो कौम हफ्ते में 6 दिन कमाने लग गई, और 6 दिन कमाती थी, 7वें दिन बैठकर खाती थी, और जिसका नतीजा क्या निकला, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, और साल में बहुत पीछे जा पड़े यूगोस्लावियन लोग। नतीजा क्या निकला, यूगोस्लाविया क्रैश कर गया, खत्म हो गया, जमीन के ऊपर से यूगोस्लाविया का नामो निशान मिट गया, टुकड़े टुकड़े होकर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बिखर गया। और 1947 के अंदर हम आजाद हुए, हमने कहा पाकिस्तान आजाद हो गया, हम एक आजाद रियासत के तौर पर इस दुनिया के नक्शे पर उभर आए। लेकिन क्या हुआ, आज उसी तरह वो पाकिस्तान को घेर कर खड़े थे 47 के अंदर। 48 के अंदर जब इंडिया ने आपके फिरोजपुर और माधुपुर हेडवर्क से आपके पानियों को रोका, मिलियंस ऑफ एकड़ पर खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो रही थी। उसके बाद 60s के अंदर इंडिया ने आपका रावी, ब्यास और सतलुज का पानी रोका, जब आपका वजूद दांव पर लग चुका था, जब आप जंग लड़ने को तैयार थे। वर्ल्ड बैंक ने आपको उस वक्त सबसे बड़ा धोखा दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको कर्जे देते हैं, हॉलैंड भी इसमें शामिल। वर्ल्ड बैंक ने कहा हम आपको कर्जे देते हैं, आप डैम बनाएं और ये दरिया हिंदुस्तान को छोड़ दें। जिसका नतीजा क्या निकला कि आपने दरिया हिंदुस्तान को छोड़ दिए, अपने रिसोर्सेज छोड़ दिए। हजारों सालों से जो दरिया बह रहे थे, जो पाकिस्तान की मिट्टी की तरफ बह रहे थे, वो दरिया आपने दे दिए और उनसे कर्जा लेकर डैम बनाने शुरू कर दिए। ना आज तक आपके डैम पूरे हुए और उनके कर्जे इस तरह बढ़ते चले गए। आज इस कौम के ऊपर $50 बिलियन का कर्जा है और इस कर्जे के ऊपर हर साल 85 अरब रुपए फकत सूद की सूरत में हम अदा करते हैं। पूरी कौम एक जाल के अंदर जकड़ी जा चुकी है। आज 2011 के अंदर जब दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर के अंदर है, जगह जगह पर बिजली पहुंचाई जा चुकी है, मैदानों में, सहराओं में, समुद्रों में, पानियों में, हर जगह बिजली का इस्तेमाल है। ऐसे दौर के अंदर 2010 में हमारी बिजली की जरूरत थी 24,474 मेगावाट और जबकि आपके पास 6,577 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था। हमारे पास बिजली कम थी। हमारे नौजवान सड़कों पर टायर जलाने में मसरूफ थे, हुकूमती एहलकारों से हाथापाई हो रही थी, हमारे मुल्क से इंडस्ट्री उखाड़ कर दूसरे मुल्कों में लगाई जा रही थी, सिर्फ इसलिए हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। 12-12, 14-14 घंटे हमारे पास लोड शेडिंग होती है। और क्या वाकई इस जमीन की 6th लार्जेस्ट नेशन, दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी को अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज नहीं दिए? क्या हमारे पास वसाइल नहीं है? क्या हम एक ऐसी कौम है कि जिसको अल्लाह ताला ने अधूरा सामान दिया? नहीं। अब देखिए, हाइड्रल पावर का तखमीना लगाएं तो इंसान वर्ता हैरत में पड़ जाता है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है और आपके पास जो नहरें और दरिया हैं, इनके ऊपर अगर पावर प्लांट्स लगाए जाएं, 45,000 मेगावाट बिजली आपकी जमीन के ऊपर पैदा हो सकती है और यह दुनिया का सबसे सस्ता तरीका है बिजली पैदा करने का। और आपकी हुकूमत इस वक्त 6,500 मेगावाट बिजली फकत इस निजाम से पैदा कर रही है। बाकी सारी तवानाई जाया हो रही है। हजारों सालों से ये दरिया चल रहे हैं, हजारों सालों तक ये दरिया चलते रहेंगे, पानी बहता रहेगा, इसकी तवानाई को तब्दील करके बिजली पैदा की जा सकती है। 2 पाकिस्तान चलाए जा सकते हैं इससे। आपका कालाबाग, आपका भाषा, आपका दासू, बोंजी, ये सारे डैम जिनके ऊपर काम हुआ था ठप पड़े में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF आपको इनके ऊपर काम करने से रोक रही है। बैरूनी दबाव है आपके ऊपर। आपके मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल खड़ी की जा रही है। आप एनर्जी के इन रिसोर्सेज को छोड़ चुके हैं और IMF के मशवरे के ऊपर इस दुनिया का सबसे फरसूदा निजाम, सबसे महंगा निजाम जो बिजली पैदा करने का है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया से आपने तेल से चलने वाले बिजली घर उठाए और लाके पाकिस्तान के अंदर लगा दिए। जब तेल की कीमत $45 पर बैरल थी, उस वक्त यूरोप ने कह दिया था कि हम इससे बिजली पैदा नहीं करेंगे। तेल से बिजली बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन जब $151 पर बैरल हो गई आपके तेल की कीमत, उस वक्त आपने पूरी दुनिया से 50 साल पुराने बिजली घर उठाकर पाकिस्तान के अंदर लगा दिए और पूरी कौम को अजाब में मुब्तला कर दिया। ₹9.45 का यूनिट आपके बिजली घर के गेट के ऊपर पड़ता है। आपके गरीब आदमी के हाथ में जब बिजली का बिल आता है, एक हाथ में तनख्वाह आती है, उसकी आंखों के अंदर पानी होता है कि वो इस तनख्वाह से बिजली का बिल दे और 4 घंटे बच्चों को पंखे के नीचे बिठाए या फिर घर के अंदर राशन लेके आए। एक हैरत अंगेज तरीन सूरत हाल है। और अगर दूसरी तरफ आप देखें कि सोलर एनर्जी आप खत इस्तेमाल के साथ वाक़या है और आपके मुल्क के अंदर 1800 से 2200 किलोवाट पर आवर पर मुरब्बा किलोमीटर सूरज की रोशनी पड़ती है। ये इतनी जबरदस्त तवानाई है, 1 लाख मेगावाट बिजली आपके मुल्क के अंदर पैदा की जा सकती है। इससे आपकी जरूरत 24,000 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली है और आप इससे 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर यह तरीका आजमाया गया और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ तेल से बिजली पैदा
पैदा करने पर लगे हुए, क्योंकि IMF ने हमें ये दुनिया का सबसे महंगा मंसूबा दिया। हैरत की बात है कि हमारी कोताहियां, हमारी सुस्तियां, हमारे गुनाह कैसे हमारी औकात के मुताबिक, और हाँ रब्बुल इज्जत की शान देखें कि उसका देना उसकी शान के मुताबिक। आपके गैस जो है वो हैरत बहुत बड़ा जखीरा है आपके पास। टोटल एनर्जी का जो पाकिस्तान का इस्तेमाल है उसका 29% गैस है, और गैस के बहुत बड़े बड़े जखीरे बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब, बल्कि कोहाड़ तक आपके गैस के जखीरे हैं। कोहाड़ के जखीरे के बारे में तो आदाद शुमार ये बताते हैं कि ये 30 बिलियन क्यूबिक मीटर का जखीरा है, यानी कि सदियां पाकिस्तानी कौम इस्तेमाल करे तो खत्म ना हो। देखिए कि मीडिया क्या कह रहा है इसमें। ऐसे शवाहिद इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन एक और ठोस सबूत सामने आया है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुकम्मल तौर पे गैर मुल्की हाथ है। और ये सबूत सामने आया कल, जब पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के बहुत बेहतरीन जो कुएं, ताज़ा तरीन कुएं दरियाफ्त हुए हैं, जिसमें लगता यह है कि उसमें ऑयल एंड गैस इतनी निकल सकती है कि पाकिस्तान की किस्मत ही शायद बदल जाए। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट के करीब टल के मुकाम पर गैर मुल्की हंगेरियन कंपनी पाकिस्तानी माहिरीन के साथ इन तेल के कुओं पर काम कर रही है। और उसके बाद तेल की सूरत हाल देखें। रोजाना पाकिस्तान में 40,000 बैरल तेल निकाला जा रहा है। पाकिस्तान की मिट्टी के अंदर से 40,000 बैरल तेल रोजाना निकाला जा रहा है। पिछले दिनों मैं सिंध गया, एक चाइनीज इंजीनियर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा वाट आर यू डूइंग, यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे एक्सप्लोरिंग द ऑयल, तेल निकाल रहे हैं। मैंने कहा कुछ मिला? कहते व्हाई नॉट, आपके हर दूसरे जिले के अंदर, सिंध के अंदर तेल निकल रहा है, और वो तेल हम निकाल रहे हैं, मशीनरी फिट कर रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं, लॉक लगा के आपकी गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं। और मैंने पूछा कितने जखायर होंगे ये? उन्होंने कहा कि अभी हम अंदाजा नहीं बता सकते, कुएं मुसलसल निकाले जा रहे हैं, लेकिन 2 साल तक हम एस्टिमेट दे सकेंगे। लेकिन ये बात हम आपको बता रहे हैं, सरप्राइजिंग होंगे, पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। और हैरत तो अब भी है कि आप देखिए कि आपके डेरा इस्माइल खान में समुद्रों से बहुत दूर इन पहाड़ों के अंदर तेल किस तरह उबल रहा है। डेरा इस्माइल खान में 150 किलोमीटर मगरिब की जानिब मुगल कोट के इलाके में शेरानी कबाइल की जमीनों में खाम तेल के छोटे बड़े 7 कुएं दरियाफ्त हुए हैं, जहां एक बड़ी चट्टान के नीचे एक तरफ पहाड़ों और चश्मों का पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ जमीनों से तेल उबलने लगा है। इन जमीनों के मालकान रोजाना यहां से तेल के कनस्तर भरकर लोगों में मट्टी के तेल के तौर पर फिरोख्त करते हैं। जियो न्यूज की टीम जब पहले इस मकाम पर पहुंची तो दम बखुद होकर रह गई।